ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، سامعین و ناظرین، وقت کا مالک صرف اللہ ہے. ٹائم یہ اللہ کی ملکیت ہے. اسی لیے قرآن مجید کے خلاصے میں سورۃ الفاتحہ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مالک یوم الدین، دنیا ہو روزے جزا یا سزا آخرت ہو، مالک اللہ ہے. جب ٹائم اس کا ہے تو فیصلے بھی اسی کے ہیں. الا لہ الخلق والامر، جس کی ٹیکنالوجی اور تخلیق ہوتی ہے، آرڈر اور امر بھی اسی کا چلتا ہے. لہذا مالک نے جب سے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے اور وقت تخلیق کیا ہے، اسی دن سے یہ فیصلہ فرمایا کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہوگی. کتاب اللہ کی سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 36 ہے. مالک خبر دیتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. یقینی خبر، پختہ پیغام، دو ٹوک فیصلہ جس میں شک، ریب اور منون کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے اور کہاں؟ فی کتاب اللہ، مالک کی کتاب میں، لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا ہے. منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4 تب کہ اللہ نے حرمت والے قرار دے دیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتاب اللہ ہی کافی ہے اور صاحب کتاب، عامل کتاب، حامل کتاب اور حافظ قرآن، ان کے قول کے بغیر، قرار کے بغیر، گفتار کے بغیر، حدیث کے بغیر
ہمیں کفایت ہے تو یہ آیت سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہے کہ 12 مہینوں کے نام کتاب اللہ سے اور 4 مہینوں کی حرمت بائی نص کتاب اللہ سے ادھار بھی ہے، سوال بھی ہے۔ یقیناً جن پہ کتاب اتری تھی وہی معلم، وہی استاد، وہی شارح، وہی مفسر، ان کے بیان کے بغیر یہ آیت مجھے اور آپ کو روکتی ہے کہ ذرا سوچئے گا۔ خیر، آتے ہیں اس طرف۔ دنیا کی توضیحات اپنی جگہ، مرشد کامل، رہبر دو عالم، رحمت کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے بات مکمل کریں۔ ذالک الدین القیم، لوگوں یہی وہ دین ہے جو پہلے دن سے لے کے مالک یوم الدین، قیامت کے دن تک قائم رہنا ہے۔ کوئی دل و جان سے مان لے تو بسم اللہ، نہ تسلیم کرے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، وگرنہ علم دیا جا چکا ہے۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، آپ نے اپنے آپ پر، لوگوں پر، معاشرے پر، سوسائٹی پر، ویسے تو 12 مہینے بین ہے، آپ ہر چاند کو دیکھ کے کہتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو چاند ہے، اسے امن والا، ایمان والا، اسلام والا اور سلامتی والا بنا دے۔ ہر مہینے میں امن ہے، مگر یہ 4 مہینے بالخصوص حرمتوں والے اور ظلم و زیادتی بالکل بین اور پابندی۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ہاں کبھی کبھی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کی سرزمین کو ہم شرک سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اگر جھوٹے ہو کے بھی وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا۔ جیسے وہ میدان میں اکٹھے ہو کے کافۃً سرگرم ہیں، یقاتلونکم، حق پہ ہونے والوں کو ماننے کی بجائے کاٹنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر جیسا منہ اسی انداز میں پھر تھپڑ آئے گا۔ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، اور یہ ہوا، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تمہارے رب کے ساتھ کس کے ہیں؟ یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ رب لا اینڈ آرڈر کو ماننے والوں کو ان کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں تقویٰ آئے گا تو وہاں بکایا ہے، وہاں اللہ کے امر کو ماننا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے والے متقی ہیں، ظاہری شکل شیپ نہیں۔ کتاب اللہ کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 مکمل ہوتی۔ ہمارے پاس 4 مہینے کون سے ہیں؟ کیا میں محبتوں سے، اپنی مرضیوں سے، قیاس آرائیوں سے، اپنی سوچ اور فکر سے یا کسی بڑے کے بیان سے قرار دے دوں؟ نہیں، میرے اور آپ کے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنیے۔ راوی ابو بکر نفیع ابن الحارث ہے، صحیح البخاری ہے، اور امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الزمان قد استدار کحیۃ یوم اللہ السماوات والارض۔ لوگوں آج جب میں حج میں ہوں، لوگوں نے زمانے بدلے، مہینے بدلے، ایام بدلے، مرضیوں کے دن بدلے، لیکن آج وہ پہلا دن جب اللہ نے 12 مہینے مقرر کر کے جس دن سے جیسے آغاز کیا تھا، آج زمانہ اپنی اس اصل کے اوپر موجود، وہی مہینہ ہے، وہی دن ہے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں، یہ 12 مہینے ہیں، 12 شہر، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمتوں والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات،
तीन लगातार हैं, जुल्कादा व जुल्हिज्जा वल मुहर्रम। जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, चार। बनता तो ये था कि इसके पीछे शव्वाल डाल लेते या अगला साथ में ऐड कर लेते, सफर भी आ जाता, लड़ाइयां सफर में। लेकिन सफर के लिए मेरे मुर्शिद ने अलग से कहा, ला सफरा, नहुस्तें, जंगें, भाग दौड़, कत्लो गारत, खुशी गमी के मुकाते, मेरे दीन में सफर में ऐसा कुछ नहीं। हुजूर तीन हुए, चौथा कौन सा है? आप फरमाते हैं वो रजब शहर मुदर अल्लज़ी बैना जुमादा व शाबान। जुमादा अत्तानिया और शाबान के दरमियान जो रजब है, इसे मैं हुर्मत का महीना करार दे रहा हूं, और ये अल्लाह के हां पहले दिन से। अच्छा जी, रजब का दूसरा नाम क्या था? इसे रजब अल असम भी कहते थे। अरब लोग कबीला बिरादरी लड़ाइयों के साथ मशहूर थे। पूरा साल तलवारों की झंकारें, तीरों की बुछाड़ें, नेजा बाजी चल रही होती थी, एक दूसरे में दुश्मनी उरूज पे है। लोग कहते थे कि जब रजब का महीना आता है तो तलवारों की झंकारें और आवाजें, गनगरज जो है वो खत्म हो जाती है। खामोश रजब, पुरअमन रजब, इसमें जंग नहीं होती। बहरहाल ये वो महीना, सातवां महीना, अरबी तरतीब में मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल तानी, जुमादा अल उला, जुमादा तानिया, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा, इस महीने से हम गुजर रहे हैं। और इस महीने की बाबत बहुत कुछ दुनिया कहती है, मानती है, सुनती है, जानती है, अपने अपने अंदाज में दुनिया चल के। हमारी एक ही कोशिश होती है कि जितने भी इस महीने या किसी भी महीने के बारे में मन मर्जी के बयानात, खिताबात, आरा और गलत तसव्वुरात, मिसकंसेप्ट जो पाए जाते हैं, हम उन्हें खत्म करके अपने दोस्त अहबाब को वो बताएं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। याद रहे, हर दिन कोई ना कोई खुशी है, हर दिन कोई ना कोई गम है। बड़े से बड़े अजीम लोग इस दुनिया से हर दिन जा रहे हैं, और हर दिन कोई ना कोई विलादत है। और विलादत होते लोगों को पता नहीं चलता कि कौन पैदा हुआ है और इसका मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, जब तक कोई वक्त नहीं गुजारता, पढ़ लिख नहीं लेता, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे अल्लाह ताला उसको या अपनी रहमतों से उरूज नहीं दे देते, पता नहीं चलता। फैसलाबाद में हमारी बेटी अरफा करीम पैदा हुई, दुनिया नहीं जानती थी, चंद लोगों के बीच में थी। कैसे आगे बढ़ी उम्र के साथ, रब ने क्या काम लिया, दुनिया में का नाम कमाया, शायद सब बच्चियों के हिस्से में नहीं है। पैदा होते हुए कोई मशहूर नहीं होता, अगर है भी तो एक महदूद पैमाने पे, लेकिन हमने एक आदत बना ली। इस्लाम ने जिसे अप्रोच नहीं किया और उसके ऊपर जोर नहीं दिया, हम विलादत पर, वफात के ऊपर सारा जोर लगा देते हैं। मकसद हल हो या ना हो, यही हमारी जिंदगी का वतीरा है। यकम रजब होता है तो हम इसे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की विलादत के तौर पे मनाते हैं। दुनिया मना रही है, वेलकम। 3 रजब है इमाम की शहादत है, 5 रजब है विलादत है, 9 रजब है अली असगर की यहां पे विलादत है, 10 है ये इमाम की विलादत है, 13 है इमाम अली की विलादत है, 15 है बीबी ज़ैनब की वफात है, 22 है अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया की वफात। अल्लाह इन सब से राजी हो। 24 को फतेह खैबर है, 25 को इमाम मूसा की वफात है, 26 को जनाब अबू तालिब की वफात है, 27 को मेराज शरीफ है, और 28 को रजब को इमाम हुसैन की रवानगी है मदीना से मक्का। हर दिन तारीखी एतबार से अपना मुकाम मर्तबा रखता होगा। सवाल यह है कि मेरे महबूब ने
अपनी जिंदगी में रजब कैसे है, मामूलात जिंदगी क्या रखें। एक उसूल याद कर लीजिए, पूरी सीरत पढ़ लीजिए, पूरी सीरत। बात दिनों की होगी तो मेरे और आपके महबूब ने हफ्त रोजा एतबार से जुमे को स्पेशली टाइम और वक्त, खुतबा जोहर के वक्त में इस रूटीन से नवाजा है और वो इंशाअल्लाह कयामत तक इसे मिलेगी। दिन सोमवार का हो, पैगंबर ने रोजा रख के दिखाया है, एजाज बख्शा है। दिन जुमे रात का हो, जुमे रात पर ही बरात, ऐसा कोई नहीं, रोजा रख के और बताया कि इन 2 दिनों में अल्लाह के यहाँ अमलनामे पेश होते हैं और मैं चाहता हूं कि जब मेरा अमल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोजे से हूं। यह तो है हफ्त रोजा तरतीब। महीनों के एतबार से आइए, साल का आखिरी महीना मेरे और आपके महबूब ने उसके पहले 10 दिन पूरे साल में किसी महीने के किसी दिनों की उतनी अहमियत नहीं जितनी उनकी गिनवाई है। अल्लाह का शुक्र है, हम बयान करते हैं इन्हीं अय्याम में हज है, इन्हीं अय्याम में यौम तरबिया है, यौम अरफा है, यौम मिना है और फिर अय्याम तशरीक है। इन्हीं अय्याम में यौम ईद उल अजहा है। जो मेरे महबूब ने इन दिनों को स्टेटस दिया, मुकाम दिया, अल्लाह का शुक्र है, हम उसके ऊपर उम्मत को गाइड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। जो फजाइल सही मेरे महबूब ने बयान किए हैं लोगों को देते हैं। हम किसी की खुशी या गम में रुकावट नहीं करते। शर्त यह है कि मेरे महबूब की जुबान से, किताब और सुन्नत से उसकी इज्जत अफजाई, उसका बयान मौजूद हो। वल फज्र व लयालिन आश्र, हमें फजर के वक्त की कसम और 10 दिनों की उन रातों की कसम के जिनको महबूब ने अफजल तरीन करार दिया और अल्लाह ने उनको मुकर्रम। बात महीनों की आए, मेरे पैगंबर ने शाबान के रोजे, मुहर्रम के रोजे बयान किए तो हम बयान करें। बात दिनों की आए, यौम अरफा का रोजा, आशूरा का रोजा, फजीलत बयान की हम बयान करें। 10 दिनों की बात आई, जुल्कादा, हम बयान करें। बात महीनों की आए, मेरे पैगंबर ने कहा रमजान का महीना, जहन्नम के दर बंद कर दिए जाएं, जन्नत के दर खोल दिए जाएं, रहमत के दरवाजे खुल जाएं, आसमानों के दरवाजे खुल जाएं, शैतान बांध दिए जाएं और रब पुकारे कि है कोई आने वाला, खैर के तालिबा, आज नहीं आया तो कब आएगा, शर की तरफ भागने वाले रुख आज ना रुका तो कब रुके। आखिरी अशरे को एतिकाफ, आखिरी अशरे की ताक रातों को, पूरे साल की रातों से मुअज्जज और लैलतुल कद्र को खैरुम मिन अल्फ शहर का स्टेटस दिया कुरान ने। हम बयान करें, आप जागें, जगाएं। इज़ा दखल अल अश्र अल अखीर शद्द मीज़रा वाही का ज़अहला, मेरे महबूब कमर बस्ता हो जाते, घर वालों को जगाते, खुद जागते, रब की इबादतें करते, मुनाजात में वक्त गुजरता, लैलतुल कद्र की तलाश रहती। हम करें। शव्वाल की यकम आए, मेरे महबूब ने ईद उल फितर करार दी, हम उसे तस्लीम करें, बयान करें और वैसे करें जैसे महबूब ने बयान किया। याद रखिएगा, दुनिया सारी एक तरफ, मेरे मुर्शिद ने कहा ईद का दिन है, कोई खातून पर्देदार, बड़ी छोटी, घर में न रहे, जाओ पता करना। अल्लाह का शुक्र है, हम बाजारों में दाएं बाएं तो चले जाते हैं, फैमिलियों को लेके मेलों में चले जाते हैं, इफ्तिताह हो तो चले जाते हैं। जिस दिन को मेरे पैगंबर ईद मुकर्रर करें, उस दिन न बनना, न संवरना, न नहाना। वो जी नहीं 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 नहीं, रहने दे, मर्द जाए बस। मेरे मुर्शिद ने कहा निकालो, कोई औरत घर ना रहे। हुजूर 2 बड़ी प्रॉब्लम है। पहली, जो अय्याम के साथ है उनका क्या करें? कहा उनको भी लेके। कहा हुजूर आ गई है मैदान में,
जहां नमाज पढ़नी है, कहा सफू में नहीं बैठे, साइड पे हो जाए, बैठे वहीं पे, नमाज को देखें, खुतबे को सुने, और जब दुआ हो तो दुआ में शामिल। हुजूर एक और मसला है, सबके पास इबाए नहीं, चादरें नहीं, जिलबाब नहीं। कहा जिसके पास बड़ी चादर है वो उस चादर के अंदर दूसरी को लेकर के आ जाए, ये है खुशी, ये है उसको सेलिब्रेट करने का तरीका, ये है उसकी टाइमिंग, ये है तारीख, ये है वक्त। और अगर मेरे महबूब ने उसे नहीं मनाया तो ईद उल अजहा को देख ले। हम हज के दिनों में 10 जिलहिज्जा को आपने हमेशा ईद उल अजहा पढ़ी है, लेकिन जिस साल हज कर रहे थे बैतुल्ला से 4 या 5 किलोमीटर के फासले पे आप मीना में थे, मगर आपने ईद उल अजहा नहीं पढ़ी, ना मीना के अंदर ना वहां जाके। अल्लाह का शुक्र है, हम हज में होते हैं, हम नहीं पढ़ते, लोग भाग रहे होते हैं, चलो ईद पढ़ाई। तो दिन गुजारिए जैसे मेरे हुजूर ने गुजारे, रातें गुजारिए जैसे आपने गुजारी, माहो साल गुजारिए जैसे पैगंबर ने गुजारे। झूठी फजीलतें हमारे काम नहीं होती, ना हम इनको उठाते हैं, ना हम इनको पेश करते हैं। लोग कहते हैं जी फजाइल में चलती हैं, आए जरा नजारा करवाऊं। आम लोगों से पूछिए, अखबार में पढ़िए, तहरीरें पढ़िए, रजब के महीने के फजाइल में लाजमी लिखा होगा, हदीस नबवी में इरशाद है, आपने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, बड़ी फजीलतें हैं रमजान की, बड़े फजाइल हैं शाबान के, रजब के, मगर ये जो तीनों लफ्ज हैं, तीनों लफ्ज घड़ के मेरे हुजूर के ऊपर झूठ बोला गया, आपने ये लफ्ज नहीं बोले। कोई मुजल्ला उठाइए, कोई जरीदा, कोई अखबार, कोई दीनी पर्चा, यार डर नहीं लगता? हुजूर ने कहा है कि जो मेरे ऊपर झूठ बोलेगा कयामत के दिन, मुफ्ती साहब आपका कुब्बा और जुब्बा और दस्तार काम आने वाली नहीं, ये जिस मोटे सोफे और गद्दी पे बैठ, फतवे की गद्दी पे गद्दी नशी बन के बैठे, मुफ्ती बने हो, फजाइल बयान करने वाले हो, अगर इसी जुबान पे कोयले और नीचे कोयले बिछा दिए गए, दम दे दिया गया तो क्या करोगे? सुनिए जो झूठ बोले गए इस महीने के हवाले से हुजूर पर, आम बंदे पे नहीं। फरमाया रजब शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है, महबूब पे झूठ। वह शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, मेरे आका और मुर्शिद पे झूठ। वह रमजान शहर उम्मती, रमजान मेरी उम्मत का महीना। लाखों फजाइल होंगे मगर ये महबूब ने नहीं कहा। कीला या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल, मा माना कौली का रजब शहरिल्लाह। घड़ी हुई हदीस के अल्फाज जो बना के पेश की गए, सुनिए। कहा हुजूर आपका क्या माना है कि रजब अल्लाह का महीना है? काल, आपने कहा, झूठ बोला गया, 4 चीजें बताई गई इसमें। कहा ले अन्नहु मखसूसुम बिल मगफिरा, अल्लाह ने इस महीने को खास कर दिया अपनी मगफिरत के साथ, बाकी महीनों में मगफिरत नहीं होती। झूठ बोला गया मेरे हुजूर। वफीही युहकनुद्दिमा, अल्लाह इस महीने में जिनका खून वाजिब होता है, मेरा रब उनका भी कत्ल रोक देता है, क्योंकि इसमें लड़ाई से रोका गया। झूठ है मेरे महबूब के ऊपर। वफीही ताबल्लाहु अला अंबिया, अंबिया जिनसे रब नाराज था उनकी तौबा अल्लाह इसी महीने में कबूल करते थे। झूठ बोला गया मेरे महबूब पर। वफीही अनकद औलियाहु मी यद आदाइही, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह अपने वलियों को उनके दुश्मनों से बचाते थे। यानी बाकी 11 महीने नहीं, सिर्फ इस महीने में। झूठ होने के लिए इतना ही काफी है, बांधा गया बनाया गया। लंबी हदीस है लेकिन मैं चूंकि चलती है मार्केट में तो पता होना चाहिए। मन सामहु इस्तौजब अलल्लाहि सलासत, जो बंदा इसमें रोजा रख लेना, अल्लाह 3 चीजें अपने ऊपर लाजमी और वाजिब करार दे लेते हैं। मगफिरतन लिजमीइ मा सलफ मिन ज़ुनूबि, अल्लाह उस बंदे के पिछले सारे गुनाह माफ कर देते। व इस्मतन फीमा बकिया मिन उम्रे,
अल्लाह पूरी जिंदगी उसको फिर कभी गुनाह में, बाकी लाइफ कोई गुनाह में मुब्तला ही नहीं होने देते। वह अमानम मिनल अत्शी यौमल अर्दिल अकबर, क़यामत के दिन जब प्यास लगेगी मेरा रब उसे प्यास नहीं लगने देगा। भाई फजीलतें तो बहुत बड़ी हैं, दिल तो करता है। झूठी फजीलतों का मोहताज नहीं है दीन। महबूब पे झूठ बांध के मौजू रिवायतों का मोहताज नहीं है पैगंबर का दीन। अब आगे मजीद घड़ी गई, झाड़ू ने घड़ी, और क्या कहता है, फकाम शैखुन ज़ईफ़ुन फ़क़ाल, एक बूढ़ा खड़ा हुआ और पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लअजिज़ु अन सियामिही कुल्ल, अल्लाह मैं तो पूरा महीना महबूब रोजा नहीं रख सकता रजब का। कहा ऐसे करो, फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम अव्वल यौमिन मिन, रजब शुरू हो तो पहले दिन रोजा रख लिया। झूठ है मेरे महबूब के ऊपर बांधा गया, और बड़ी दीदा दलेरी से, फ़इन्नल हसनत बिअश्रि अम्सालिहा, अल्लाह के यहां नेकी 10 के बराबर। वह औसत यौमिन मिन, जब दरमियानी दिन आए फिर रख लेना। वह आखिर यौमिन मिन हो, आखिरी दिन भी रख लेना। फ़इन्नका तुअता सवाब मन सामहु कुल्ला, आपको उतना सवाब मिल जाएगा जैसे किसी ने पूरा रजब का महीना रोजे रखा। ये जितना मैं बयान कर चुका हूं हुजूर पे झूठ बोला जा चुका है, मौजू है, मन घड़ता है। आगे सुनिए, फरमाया वला कि ला तक़बलू अन अव्वल लैलति जुमअतिन फी रजब, रजब के महीने के पहले जुमे की रात जो आए ना उससे गाफिल ना होना। फ़इन्नहा लैलतुन तुसम्मीहा अल मलाइकतु अर्रग़ाइब, इसका नाम रग़ाइब फरिश्तों के हां मशहूर है, लैलतुर रग़ाइब, और आपने सुना होगा सलातुर रग़ाइब पढ़ाई जाती है। तफसील सुनिए, वज़ालिका अन्नहु इज़ा मज़ा सुलुसुल लैल ला यब्का मलकुन फी जमीइस समावाति वल अर्द इल्ला व यज्तमिऊन फिल काबति व अहवालिहा, जब रजब के पहले जुमे की जो रात है, जब इसका आखिरी 1/3 सुलुस बाकी होता है, इसे उठा के अहमियत सुनिए। अल्लाह के यहां फरिश्ते सारे बैतुल्लाह में और उसके कुर्ब जवार में इकट्ठे हो जाते हैं, आसमान पे कोई फरिश्ता नहीं रहता, और ये आकर के अल्लाह फिर इनके ऊपर देखते हैं, नजर फरमाते हैं। फयक़ूलु मलाइकती, ओ मेरे फरिश्तों, सुलूनी माशे, तुम आज जो मांगना है मांगो। फयक़ूलूना या रब्बना हाजतुना इलैक, अल्लाह हमारी हाजत सिर्फ इतनी है, अन तक़बिर लिस्सुव्वाम रजब, रजब के महीने में जिन्होंने रोजे रखे अल्लाह उनको माफ कर, सानू तो लोड़ नहीं, रोजेदारों को माफ कर। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल क़द फ़अल्तु ज़ालिक, ये सुन के इतनी बड़ी फजीलत दात तो मिलेगी, मगर कौन जाने के झाड़ू ने घड़ के हुजूर के जिम्मे लगाया है, झूठा है, झूठ बोल रहा है, और हदीस कह के बोल रहा है। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े तरीके से। लोग एतबार न करते तो क्या करते, वो मिंबर पे खड़ा होकर के झूठ बोल रहा था बड़े तरीके से। लोग तो सर पे किताब रखे, कहते काश यार ये फजीलतें घड़ी हुई हैं, हुजूर ने बयान नहीं की, जिम्मे लगाई गई हुजूर के। सुम्मा काला रसूलुल्लाह, मजीद झूठ सुनिए, हुजूर के जिम्मे लगाया गया, वमा मिन अहदिन यसूम यौमल खमीस अव्वल खमीसिन फी रजब, जो रजब के महीने की पहली जुमेरात का रोजा रखता है, सुम्मा युसल्ली फीमा बैनल इशाई वल अतमा, फिर वो नमाज पढ़ता है ईशा के बाद और अतमा के दरमियान, यानी लैलतुल जुमा, जुमे की रात, इतना तय अशरत रका, 12 रकअत है। ये है वो सलात गैब और मशहूर जो पढ़ाई जाती है। यक़रा फी कुल्लि रकअतिन फातिहा, मर्रत, एक मर्तबा फातिहा। व इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र 3 मर्रात, 3 मर्तबा सूरतुल क़द्र, और फिर उसके बाद वकुल हुवल्लाहु अहद, ये जो सूरह इखलास है ये 12 मर्तबा पढ़े। यफ़सिलु बैन कुल्ल रकअतैन बितस्लीमा, 2 रकअत पढ़ के सलाम फेरता जाए। फ़इज़ा फ़रग़ मिन सलातिही, जब नमाज 12 रकअत से फारिग हो, सल्ला 70 मर्रा, फिर 70 मर्तबा दुरूद भेजे और कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही
फिर ये वाला दुरूद पढ़े, सुम्मा यस्जुदु, फिर सजदा करे, फयकूलु फी सुजूदिही, और सजदों में पढ़े सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, 70 मर्तबा जो है इन्हों सजदे में पढ़े। सुम्मा यरफउ रासा, फिर सर उठाए, फयकूल, फिर बोले इग़फिर वरहम, अल्लाह मुआफ कर दे, अल्लाह रहम फरमा, वतजावज़ अम्मा तअलम, अल्लाह जो तू जानता है उससे तजावुज फरमा, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अज़म, 70 मर्रा, फिर 70 मर्तबा ये दुआ पढ़े। तुम यस्जुदु सानिया, फिर अगला सजदा करे, फिर उसमें भी वो कहे जो पहले सजदे में कहा था, फिर अल्लाह से अपनी हाजत मांगे तो उसकी हाजत पूरी होगी, नमाज हाजत है। अब मजीद सुनिए और झूठ, ये जितनी बातें मैंने बयान की हैं हुजूर पे झूठ, मौजू मन घड़त है। फिर मेरे हुजूर के जिम्मे हल्फन ये बात डाली गई झूठ को मजबूत करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लदी नफ्सी बियदी, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा मिन अब्दिन वला अमतिन सल्ला हादिहि सलाह, जो भी बंदा और बंदी ये नमाज पढ़ेगा पढ़ेगी, इल्ला गुफिर लहू जमीअ दुनूबि, अल्लाह उसके सारे के सारे जमीअ दुनूबि मुआफ फरमा देंगे। वलौ कानत मिथल ज़बदिल बहर व अदद बरकिल अशजार, ये समंदर की झाग के बराबर या दरख्तों के पत्तों के बराबर भी गुनाह होंगे, माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको ये अथॉरिटी देंगे कि वो 700 अफराद अपने खानदान के बख्शवा लेगा और उनकी सिफारिश करेगा। झूठ बोला गया हुजूर पर। खैर बात अभी आगे बड़ी लंबी है, पता नहीं क्या क्या बयान करते गए, जो आता गया लिखते गए। रावी किसको बनाया? हजरत अनस को रज़ी। इस झूठ को साबित करने के लिए रावी किसे बनाया गया? जनाब अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और रावी इसके अंदर है कौन जिसने ये झूठ बांधे? अली बिन अब्दुल्लाह इब्न जहज़म, मशहूर बिवज़इल हदीस, झूठी हदीसें घड़ घड़ के बयान करने में शोहरत रखता है। इमाम दैलमी ने फिरदौस में, इब्न असाकिर ने मौजम अश-शयूख में और अल्लामा इब्नुल जौज़ी में अल मौज़ूआत के अंदर, अल मौज़ूआत जहां भी आए तो इसका माना आगे बेशक शरीफ भी लिखा हो, तो ये वो झूठी बातें हैं जो हुजूर पे वज़ा करके घड़ के झूठ बांध के बनाई गई और उम्मत को इंतबा किया गया भाई इनसे बचना, ये सही नहीं है। और हमने उनको लेकर के सीने से लगाया, फजाइल में बयान किया। और अगर कोई कह दे कि मौलाना ये हदीस मौजू है, मन घड़त है, झूठी है, बोहतान है मोहम्मद और खुद, वो नहीं जी फजाइल से जान दो यार, कोई रहन में दो, वो की बयान करिए। आए बताते हैं क्या बयान करना है, सही की तरफ बढ़िए, बाकी चीजें एक तरफ। मैं इतना अर्ज करूंगा, सिर्फ इतना, कल हुस्न इत्तेफाक से 22 रजब, हम दुनियादारों में भी बैठते हैं, दीनदारों में भी बैठते हैं, तो दोस्त बड़े शद मद के साथ, बाजी खा लो, मिठा है, पूरियां शूरियां ने, हर्ज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए थे, का हुजूर फुला जगह पर इन्हीं अय्याम में हम अतीरा मनाते, खाने लगाते हैं। का इस दिन के साथ करने की खास वजह बताया गया जी, फुला सबब। आपने कहा अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो अल्लाह का सारा साल है, जब मर्जी खाने का कर लें, लेकिन खास करके स्पेशली बनाओगे तो रोका जाएगा। इस दिन कोई खास मन्नत मानी गई है, कोई नजर मौला नियाज़े हुसैन हुई है या नियाज़े बकर, या जिसके भी जिम्मे आप लगा रहे हैं सरकार, पीछे मैंने सारी गिनी है, यकम रजब से लेकर 28 तक बड़े बड़े नामी गिरामी सफर भी है, मेराज भी है, विलादतें भी हैं, शहादतें भी हैं, अमवात भी हैं, तब क्यों नहीं रखा? कोई तो पूछने वाला हो, सिर्फ 22 को क्यों? सर जी मैं उस दिन पूछूंगा, मुझे बड़े लोग जवाब देते हैं और कहते हैं तुसी किसी ना कोई चंगी शय खाण ना दिया जाए। भैया आप पूरा साल अपने घर में खाते, हमने कभी रोका, कभी टोका? दीन बना के पेश करोगे तो हम अपने लोगों को समझाते रहेंगे, ये पैगंबर का दीन है, ये तेरा मेरा नहीं है। चस तब आएगी जब घर में बाप की
या अपने किसी बड़े और वडेरे की मौत हो और चारपाई पड़ी हो, मैं खुशी मनाता हुआ सिर्फ गली से गुजर गया ना तो तकलीफ होती। ये बात याद रखिए। क्यों नहीं करते शादी मुहर्रम में, क्या मसला है? उसी पैगंबर के ही है ना सारे कुछ। वो जी इस वजह से, हालांकि उनकी अपनी शादियां साबित है, लेकिन इसके बावजूद भी हम डट गए। ठीक है, बात वही है कि अंदर के कीने रब जानता है, लेकिन पता चल जाता है। बड़े शद्दोमत से कह रहे थे पाजी ये बड़ी फजीलत है कूंडे करने, कूंडियां च पकाना। और हमने तो बचपन में लफ्ज़े कूंडा जो सुना था, सीधी सी बात है, हम तो आज भी कहते हैं। अपने डेरे ते साडे कोल जेड़े एडे एडे कूंडे सी ना, उन्हां च असीं ते लस्सी पाई दी सी कुत्ते ने। मुझे आज भी उसकी शक्ल याद है। आपने इसमें पकाना है, खाना है। अब आ गए ना दही वाले कूंडे परात की शक्ल में, वो जी ये पकान भाई पकाएं, मुझे कोई अर्ज नहीं, आप डेली लगाते हैं, आज क्यों लगा रहे हो? बाजी है, ये बहुत अच्छी चीज है। मेरी आदत नहीं, ना मैं ऐसे कहता हूं ना मैं करता हूं, मैं बड़ी सादगी के साथ सुन लेता हूं, समझा देता हूं कि समझे बिस्मिल्लाह नहीं। कल ऐसे ही ना दिल से एक दुआ निकल गई, यार जी एडा ही चंगा काम है ते अल्लाह तेरी नस्ल का कूड़ा कर। गुस्सा कीता उठ के फूं फूं करके वो चले गए। मैंने 2 जुमले लिख के सिर्फ फेसबुक पे, मेरी आदत नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं लगाता, मैंने लिखा, उसके बाद फिर गुस्सा। भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो, अच्छा काम है, आने दे अपनी नस्ल का। पता चला कि पीछे कुछ चीजें हैं। कूंडे बनते थे जिसने पूरी जिंदगी शर का, बातिल का, झूठ का कूंडा करके अंडरवर्ल्ड को घुसा के रख दिया था, उसे अमीर मुआविया कहते हैं। आप राजी हो या ना हो, मेरा रब राजी है, फैसले ऊपर है। अहले सुन्ना वल जमा, ऐसा ऐसा इनके इंशाल्लाह समझ आएगी बात, जरा लेट आएगी, बिलखुसूस सुन्नी भाइयों की। एक वक्त था हमारे कादरी भाई ये सारा कुछ कहते थे, यार वहाबियो तुम ठीक नहीं हो, ऐसे करो, तुम हर चीज रोकते हो। अब जब समझ आई है तो बड़ी सख्ती से कहते नहीं 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 यार काम ठीक नहीं। वो बंदा भी मेरी मंजी नूं हथ ना लावे जेड़ा अमीर मुआविया दे बारे कोई गलत सोचता। इंशाल्लाह समझ आएगी, लेट आएगी, लेकिन अगर चिड़ियां खेत चुग गई फिर समझ आई तो फायदा नहीं, समझ जाइए। अच्छा, इस महीने में मेराज, ये मेरी मुलाकात का बड़ा अहम तरीन मौजू है, अगले जुमे में भी चलेगा, आज भी है। इसकी तारीख पे झगड़ा, और ये उम्मत की बड़ी खूबसूरती है कि तारीखों पे लड़ती है और लेके पीटती रहती है, आदत बन गई है। लेकिन कोई नहीं समझेगा कि इस्लाम जहां तारीख को अहम करार देता है, तारीख बता देता है, आगे पीछे नहीं होने देता। ईद उल फितर की तारीख का पता है कि नहीं? कभी यकम शव्वाल से 2 हुई? ईद उल अजहा का इल्म है कि नहीं? अहम थी, डेट बता दी। आज तलक उम्मत ने 10 से 11 नहीं करी। यौम तरबिया 8 ज़िलहिज्जा तारीख बता दी, 7 को नहीं होता, एक दिन बाद में नहीं होता। यौम अरफा 9 तारीख बता दी। यौम रमी जमार या यौम नहर 10 बता दी। अय्याम तशरीक 11, 12, 13 बता दी। जहां तारीख जरूरी थी तारीख बताई। यकम रमजान चांद देखो, काम शुरू करो, क़याम करो, सियाम रखो, तारीखें बता दी। आप क्या समझते हैं कि दीन के पास कोई तारीख नहीं थी? थी। जहां अहम नहीं थी वहां उसे नोट नहीं करवाया। पहली बात, मेराज पे मत लड़िए, महीना कौन सा था, कोई मुस्तनद दलील नहीं। साल कौन सा था, इसमें भी इख्तिलाफ। वो हुआ है। अगर तारीख अहम होती तो इसके ऊपर मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बाकी तारीखें मुकर्रर की हैं, ये भी बता देती। आपकी विलादत से लेकर वफात तलक ना तब ये मनाए जाते थे, ना अपनाए जाते थे, ना ऐसा अहम था। जो अहम था वो बता दिया, डेली बता दिया, टाइम बता दिया, फजर कब है, जोहर कब है, असर कब है, मगरिब कब है, इशा कब है,
वक़्त का तयन कर दिया, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। टाइम का लिहाज, तारीख का लिहाज रखना है। यौम आशूरा है, तारीख का लिहाज रखना है। एक एक चीज वादे की, यहां अगर मख्फी रखी है तो ये आम नहीं, पहली चीज। दूसरी, मेराज मरहलों में हुआ है, मैं कुछ मरहले आज जिक्र करूंगा, कुछ अगली मुलाकात में। पहला मरहला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेब अबी तालिब में सैयद उम्मे हानी, उनकी रिहायशगाह पे सोए। रिवायात को अगर मिलाऊं, लोग इख्तिलाफ कहते हैं, हम इसको तनासुब कहते हैं। छत खोली गई, महबूब को वहां से उठाया गया, हतीम में और हिजर में लाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल्लाह में पहुंचा के जो पहला मरहला हुआ है, उस मरहले का हिस्सा है, आपका सीना मुबारक चाक किया गया। अलम नशरह लका सदरक। महबूब, ये दुनिया है, साइंस आज आई है, हमने आपके बचपन में और आज आपका सीना खोल के इसके अंदर वो सारी चीजें नहीं डाल दी जिनको आगे चलना था और ऊपर जाना था। क्या लवाज़मात थे, क्या तकाजे थे। बहरहाल मैं इसी पे इख्तिसार करता हूं, बाकी तफसीलात मौजूद हैं। साइंस को और बिलखुसूस मेडिकल साइंस को, बाईपास को, सीना खोलने को, चाक करने को एक नई तरह दी गई। कितनी सदियां लगी, बात की बात है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीना मुबारक को चाक करके जो उसमें जरूरी था करना वो कर दिया। मेरा रब बेहतर जानता है। ये उसके बाद अगला मरहला है, मेरे महबूब के पास बुराक लाई गई। बुराक क्या है? साइंस अभी भागेगी, अभी दौड़ेगी, अभी चीखेगी, अभी बोलेगी, कभी इनकार करेगी, कभी कुछ कहेगी, कभी उसके ऊपर एतराज करेगी, मगर ये हो चुका है। खच्चर से छोटी, गधे से बड़ी, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके लिए बकायदा तैयार किया गया, बिठाया गया। और तेजी कितनी है कि जहां नजर उठा के पड़ती है वहां उसका कदम पड़ता है। स्पीड कितनी है, कहां है। रास्ते में 3 मुकाम और स्टे बयान किए जाते हैं, 2-2 रखते हैं। महबूब ने वहां पे पढ़ी, वादी ये बताए, फिर आगे एक वादी है, फिर आगे बैतुल मक़दिस पहुंचे। किस्सा मुख्तसर कुरान मजीद कहता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मुताला कीजिएगा जाकर के सूरह इसरा का, बनी इसराइल जिसे कहते हैं, पहली आयत। पूरी इसरा में और मेराज में 3 चीजें आपको मिलेंगी। एक, अल्लाह की कुदरत और पाकीज़गी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत और मकसद मेराज। बाकी जो चीजें हमने उसमें मिसालें लगा के ऐड की हैं वो हम नहीं करेंगे, हम उसको वहीं पर रखेंगे। लेकिन मराहिल में लेकर के आइए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफर इसरा, मक्का से लेके बैतुल मक़दिस तक इसे इसरा कहते हैं, रात का सफर, रात की सैर। आगे जो अगला मरहला आएगा उसमें मेराज, लिफ्ट सिस्टम के जरिए आसमानों की बुलंदी। मलयाला और सूरह नज्म, इसकी पहली 18 आयतें घर जाके तर्जमे के साथ पढ़िएगा। मैं इंशाल्लाह अगली मुलाकात पे उस पर भी डिटेल दूंगा। यहां बुराक है, लाई गई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दिया गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां जाके बुराक बांधी है और आपको जियाफत पेश की गई। जियाफत में दूध है, पानी है और शराब है। आप दूध चुमते हैं। खुशखबरी दी गई है, आपकी उम्मत फितरत पे रहेगी, आपने दूध को चुना है। सवारी बांधी गई है, 2 रकत महबूब ने पढ़ी है। एतराज करने वाले कहेंगे कि तब मस्जिद थी नहीं, गिरा दी गई थी। 19 हमले हो चुके हैं बैतुल मक़दिस पे, 19 मरतबा शहर बर्बाद हो चुका है। फिलिस्तीन का शहर यरूशलेम है। इसके ऊपर मेरे बाकायदा 2 खुतबे मौजूद हैं, हम इसमें वजाहत कर चुके। लेकिन जी जो मर्जी सी इमारत है सी या नहीं सी, जगह वो थी। अब आगे चलते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिफ्ट दी गई। दुनिया तेज तरीन साइंस टेक्नोलॉजी लेकर के इस वक्त बुर्ज खलीफा में और बाद आने वाली बिल्डिंगों में उसका इस्तेमाल कर रही है। तेज तरीन सवारी लिफ्ट के तौर पे ऊपर जाए। अभी साइंस बच्ची है, अभी टेक्नोलॉजी भी बच्ची है, वक्त लेगी। वो यख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह मौके देगा, बड़ी बड़ी डींगे मारेगी। लेकिन बहरहाल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाए आला का सफर शुरू होता है, इसे हम मेराज कहते हैं। आप पहले आसमान पहुंचते हैं, जिब्रील अमीन नॉक करते हैं।
अंदर से आवाज आती है मंबिल कौन है, नाम बताया जाता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। काई ने बुलाया गया है या खुद आ रहे हैं? कहा बुलाया गया है। दरवाजे खुलते हैं, तरहीब होती है, मरहबम बिब्न सालेह, नेक बेटे को हम वेलकम करते हैं। और पहले आसमान पे अल्लाह ने बशरियत के बाद बशरियत के जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तरहीब के लिए, वेलकम के लिए, खुश आमदीद के लिए रखा है। बशर से बशर, पहला बशर नबूवत में, आखिरी बशर नबूवत में, आदम से खातम, दोनों की मुलाकात। खैर अगली बातें तफसीलात में यहां छोड़ता हूं। मामला होता है, एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम के कुछ हैं लोग, उनको देखते हैं तो हंस पड़ते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो रो पड़ते हैं। सही बुखारी है। पूछा गया कौन है? कहा ये जो दाईं तरफ जिन्हें देख के ये हंसते हैं ना, ये वो सूरतें हैं जो इनकी औलाद की हैं और जन्नत में जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड पे हैं इन्हीं की औलाद में से जो जहन्नम में जाएंगे, उनको देख के ये रो पड़ते हैं, प्यो तू बच के दुख नहीं को जान। बच्चे खुशी में हों तो बाप खुश, बच्चे तकलीफ में हों तो बाप तकलीफ में। खैर आगे चलते हैं। दूसरा आसमान आता है, वही मुकालमा है। दरवाजे खुलते हैं, आपको मरहबा मरहबा कहा जाता है, इस्तकबाल होता है। और दो पैगंबर जनाब याह्या और ईसा खालाजाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब में वही बात करते हैं। सिलसिला चलता है, लिफ्ट तीसरे आसमान पर पहुंची, वही सिस्टम, वही वेलकम। क्या देखते हैं कि दुनिया का आधा हुस्न लिए जनाब यूसुफ तशरीफ फरमा, इस्तकबाल होता है, मरहबम बिकुम, बात चलती है। फरिश्ते इस्तकबाल के बाद ये मेराज आगे बढ़ती है, लिफ्ट चलती है, आसमान चौथा है, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम उसी अंदाज में और फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं। आसमान पांचवा है, हारून अलैहिस्सलाम, बड़े दबंग लबो लहजे के नबी, और कहते हैं कि ये सिफारशी नबी हैं। अल्लाह जब तक फैसला न करे, अल्लाह ने खुद मन दल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, अल्लाह ने जिससे जो काम करवाना ना तो कुछ कहलवा के करवा देते हैं। मूसा चाले नाली भी कह दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी जुबान में कुछ मसला है, तो अगर मेरे साथ आप भाई हारून को भेज दे। तो कहते हैं जी ये सिफारिश बेस के ऊपर, जिन्होंने सिफारिश को दलील बनाना होता है ना, इश्फ़अ तूजर, अच्छी सिफारिश अच्छी बात है, सलाहियतें हैं, मौके हैं, किसी के हक पे डाका नहीं है। अल्लाह ने इनको नबी बनाया। हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, पांचवा आसमान है, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, आगे बढ़े, छठा आसमान आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने। याद रखिएगा, एक रिवायत में है कि आप अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। यहां से लोग हाजिर नाजिर का मसला उठाएंगे, ये भी ज़हन में रखिएगा। और आप वहां पे कहेंगे यार कोई गल है तो सही वैसे, लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि झूठ कैसे, ताने बाने कैसे मिलाए जाते हैं, और जितनी बात है वो असल मकसद कैसे बुलाया जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। आगे बढ़ते हैं, सातवां आसमान है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगा के बैठे हैं। सातवां आसमान है, दिखाया बैतुल मामूर जा रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल करते हैं इब्न साले के साथ। और ये मरहला मेराज का, यहां पे आगे जो मरहला है वो बैतुल मामूर की जियारत। और बैतुल मामूर के बारे में सुन लें कि 70,000 फरिश्ता डेली एंट्री पाता है। ये अल्लाह के बिल्कुल अर्श के नीचे, बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर, सातवें आसमान के ऊपर। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगा के, एक तरफ जो है उनके वो बच्चे हैं, और बच्चे कौन है जो छोटी उम्र में फौत हो गए, उनके अंदर वो बैठे। शायद लंबी उम्र में दुआएं मांगी थी, अल्लाह पुत्र दे दे, अल्लाह औलाद उनके साथ रह नहीं सके, अल्लाह ने वही मोहब्बत वो बैतुल्लाह बनाने का सिला दिया। अगला मरहला शुरू आता है, मलाउल आला के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा पहुंचा दिया। सूरह नजम पढ़िएगा,
यहां आकर के बड़े सारे लोग जिब्रील के पर जला देते हैं, हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता, कोई दलील नहीं, कोई सही बात नहीं। सिदरतुल मुंतहा आलमे रोयत के अंदर वो बेरी का दरख्त जिसके लगा हुआ एक बेर हजर के मटकों के बराबर। ये मटके अगर बुजुर्गों ने देखे हों, मट्टी की बड़ी सारी पानी भरने के लिए बनाई हुई, क्या ध्यान हो जी, असी चाटी कहने हैं कुछ इलाके में मट्टी, कुछ मटका, बड़े बड़े होते थे, उसके अंदर 100 लीटर से ज्यादा पानी। ये बड़े बड़े मटके ऐसे लगे हुए बेर हैं, और उसके आगे क्या है नजर ही कुछ नहीं आता, लिखा कुछ नहीं कि यहां आगे फिर अंधेरे ही अंधेरे। अल्लाह के मामले पर्दे ही पर्दे, मालिक जाने उसका काम जाने। जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर के कुछ दूर तक पानी दिखता है, फिर आगे अंधेरे दिखते हैं, लोग पूछते हैं कि ये ऐसी जानी अल्लाह बेहतर जानता है। फिर किसी को दूरबीन मिल जाती है तो वो कुछ और आगे तक देख लेता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां से आलम औलिया के जो मला आला के मनाजिर और मशाहिद दिखाए हैं, उनमें पहला मुशाहदा कि आपने सिदरतुल मुंतहा, बड़े बड़े मटकों के बराबर लगे हुए बेर, पत्ते हाथी के कानों के बराबर, ये बयान करते हुए जिक्र किया गया। दूसरा मुशाहदा, जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ हैं और वहां पे 4 नहरें देखी गई, 2 नहरें बातन से, 2 नहरें जाहिर हैं। पूछा जिब्रील ये 2 नहरें ये कैसी हैं? कहा हुजूर ये जन्नत की नहरें हैं, और जो आपको नजर आ रही हैं जाहिर की, ये नील और फरात यहां से आपको दिखाई दे रही है। 5वां मरहला जो लोगों ने बैतुल मामूर लिखा है, मैं इसको पहले जिक्र कर चुका हूं, इसे अब लाइए जियाफत। बाद रिवायात में है कि यहां फिर हुजूर को जियाफत पेश की, वही शराब, दूध, पानी। आपने दूध को चुना। जियाफत के बाद 7वां मरहला आपको गिफ्टिंग की गई, तोहफा। ये तोहफा नमाज है, इसकी डिटेल बाकी आपने सुनी हुई है। वापस जब आ रहे थे तो छठे आसमान के मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वो लंबा चौड़ा मुकालमा, लोगों ने इसके ऊपर बातें की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित है, गिफ्ट था फर्ज नमाज, ये है मेराज का तोहफा। दिन में 5 मरतबा लाजमी और जरूरी, मगर हम खो गए, इधर उधर की बातों में लग गए। मेराज की रात जाग के वो नमाज पढ़नी है जो हुजूर ने नहीं पढ़ी, और जो हुजूर ने लाइफ टाइम नहीं छोड़ी, उसकी तरफ कोई आने को तैयार नहीं। खैर, ये मुकालमे का मरहला, नमाज 5 पढ़ने में और 50 अजर में। 9वां मरहला, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नमाज का गिफ्ट मिलता है वापस। और 10वें मरहले में जन्नत की सैर, जहन्नम की सैर और मनाजिर। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ चीजें दिखाई गई। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में मैं इस पर डिटेल गुफ्तगू करूंगा। गीबत का अंजाम और करने वालों को जहन्नम में कैसे दिखाया गया। इसी तरह सूदखोरों का अंजाम क्या हशर था जहन्नम में, नमाज के तारिकीन और सुस्ती करने वालों का वहां पे क्या अंजाम हुआ। मुनकरीन ज़कात किस हालत में थे, जिनाकार किस हालत में थे। इन मरहलों के बाद 11वें मरहले में वापसी होती है, और बैतुल मक़दस में सुनन नसाई की रिवायत के मुताबिक मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके सफ़े बना ली जाती हैं, सारे अंबिया पीछे हैं और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमामत करवाई जाती है। अगले मरहले में आपको वापस मक्का पहुंचा दिया जाता है, और उस मरहले में ऐलान मेराज, ऐलान इसरा, और अगले मरहले में तकजीब और तस्दीक। कोई अबू जहल बन गया, कोई अबू बकर था सिद्दीक बन गया, और आज भी वही मरा है। असबाक और दुरूस इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में। कुछ अहम चीजें, आज का सबक यह है, हर महीना गुजारिए हुजूर के इरशादात के मुताबिक, सही फरामीन के मुताबिक, आपकी सीरत और आपके उसवा के मुताबिक। अपनी तरफ से उसमें चीजें, खाने का दिल करता है जो मर्जी बनाओ, हम नहीं रोकते। पीने का दिल करता है जैसे मर्जी मशरूबात बनाओ, मगर लोगों को दिखा दिखा के उन लोगों के साथ उसके फजाइल सच्चे झूठे हुजूर के जिम्मे लगा के बयान करो, तो हजरात ये हमें आदत नहीं है। तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी।
जिस रिजक से आती हो परवाज में कुटाई। जो रिजक खा के बंदे की वैल्यू गिर जाए, मुकाम गिर जाए, उससे कहीं बेहतर नहीं बंदा भूखा रह ले। सर जी, पराए टेंटू में बड़े लोग घुसते हैं, शादी हालों में बड़े लोग जाते हैं, चीना झप्पी कर लेते हैं, और फिर आप ये भी देखते हैं जब अगले पूछ लेते हैं किधरों आया जे, असी कुड़ी अल्लू, तुसी किधरों जे, असी मुंडे अल्लू। तो कादा कुड़ी मुंडा, असी दे हकीका रखे। फिर जब शर्मिंदगी होती है तो फिर ऐसे रिजक पे मत लपकिए जिस रिजक की तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न देखा न उसकी फजीलत बयान। खिलाइए गरीबों को, यतीमों को, पूरा साल खिलाइए, खास दिन करके। अगर आप कहीं पैगंबर के यारों की दुश्मनी में तो नहीं कुछ कर रहे, पता कल चलेगा। अल्लाह ताला आसानी करे। दावत देते हैं प्यार की, किताब व सुन्नत की, असल की, हकायक की, उसवा और खुदवा की। हमारी लंबी मुलाकातें चली आ रही हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। आपकी रात गुजारनी है तो गुजारिए, रजब गुजारना है तो गुजारिए, महीने दिन अय्याम गुजारने हैं तो गुजारिए, मगर वैसे जैसे मेरे महबूब के शब रोज थे। अल्लाह अमल की तौफीक दे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको कलमा नसीब किया है, पैगंबर का उम्मती बनाया है। अल्लाह ने दिल दिल में धड़कने और मोहब्बत दी है, साथ में अल्लाह ने अकल और शऊर से नवाजा है। अंधी अकीदत और अंधी मोहब्बत दीन इसे नहीं देगा। अगर आंखों की बिनाई नहीं भी है, जनाब अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हूं, तो उनके बारे में भी हमने साबिका मुलाकातों में पढ़ा था कि दिल के दीदे खुले होते हैं दलाइल की दुनिया में, उन्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अजान फजर कब बुलंद करते हैं? जब पैगंबर के सहाबी कहते हैं सब्बाहत सब्बाहत इब्न उम्मे मखतूम, सुबह होगी, फजर तलू होगी, मीनारे पे चढ़ते हैं, मेज़ना पे अजान कहते हैं, अल्लाह की आवाज बुलंद करते हैं। याद रहे, यही पूछते हैं महबूब घर दूर है, नमाज घर में पढ़ लूं? आप कहते हैं जी। जाने लगते हैं और लौटा के पूछते हैं अजान आती है? आवाज सुनते हो? कहा जी। कहा फला, फिर नहीं। आंखें खोल के जिए, नाबीना है पूछ के जिए। दुनिया में हर चीज मुयस्सर, इतनी आंखें बंद ना करें कि सुन्नत की जगह बिदआत समेट के ले जाएं ते कल नू मोल ना पवे। मैं इतनी गुजारिश करूंगा, दुनिया में सिवाय एक शोबे के, मैंने हर शोबे में देखा है लोग नोट गिनते भी हैं, बार बार गिनते हैं, देखते भी हैं, चेक भी करते हैं। किसे पंप ते जाके 5000 का नोट दवो, वो जड़ा खलोता बच्चा ना पता नहीं किन्नी दफा इधर हथ फेर इतने दे, धूप लगा के देख, यूं करके देख, जब तक तसल्ली नहीं हो जाती वो नोट नहीं रखता। आपका क्या ख्याल है? अल्लाह ताला बिदआत, खराफात, झूठी मन गढ़त बातें रख लेंगे? धोखे में न रहें। अमल खालिस, दलील खालिस, यकीन खालिस, ईमान खालिस, फिर जाकर के बात बनेगी। रब को धोखा नहीं दिया जा सकता। पैगंबर ने मस्जिद नबवी में पढ़ी हुई नमाज 3 दफा लौटा दी। जब पढ़ तू, फिर पढ़, तूने नहीं पढ़ी, फिर पढ़, तूने नहीं पढ़ी, फिर पढ़, तूने नहीं। हम बड़े इजी, जो होता है चलेगा नहीं। खालिस अमल कामयाबी की ये जमानत है, इस पे मेहनत करें, कोशिश करें, अकीदा खालिस अपनाएं।